Hello, all the students. Welcome once again to Icon Says Cat YouTube channel. And today we are going to have a wonderful session on the beginning of para formation. We actually can call this pattern as jumble paragraph. It can also be called as para jumbles. So, students, today we are going to learn how we people can master this. And especially students, when we talk about cat, आप एक चीज मान के चलो, cat में जितना कंपलसरी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस हैं, या यूं कहूं each and every cat we see that without RC passages cat won't come. तो जितना इनएविटेबल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस हैं उतना ही इनएविटेबल आप जम्बल्ड पैराग्राफ्स को मानकर चलो. Students, every year we see 3-4 questions are actually based on jumbled paragraphs, and if you master this technique how we people can get the correct answer. Students जिन्हें प्रॉब्लम आती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, I personally believe that उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है jumbled paragraph. And the best part happens to be these are theta type questions where negative marking is not there. But still students, as the options are not given to us, even if एक particular sentence भी अगर हमने इधर उधर arrange किया तो possibly students we can commit a mistake as well. और ये थोड़ा सा time consuming होता है. So after investing some time, if we realize कि sir even the answer is not correct, though there is no negative marking, but at least time we are going to lose. So students, welcome once again. We are going to have a wonderful session on jumbled paragraph. So today I'll make you solve some very tough level, some very good level questions based on jumbled paragraph. Okay, so all the students join fast, and we people are going to have a very good discussion now, and I'm very confident इस पूरे डिस्कशन को अगर आप एक बार करोगे, एंड दैट इज नॉट ओनली अबाउट वन क्लास, आप देखोगे स्टूडेंट्स इन द कमिंग डेज वी आर गोइंग टू टेक मेनी सच क्लासेस वेयर एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को लेकर तो एक पूरी सीरीज चली रही है. 100 आरसी पैसेजेस का मेरा प्रॉमिस है कि कैट लेवल के बहुत अच्छे पैसेजेस विच इंक्लूड सम वेरी गुड पीवाईक्यूज एट द सेम टाइम सम सेपरेट प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स ऑल्सो वी विल कीप टेकिंग ऑन दिस चैनल. एंड जम्बल पैराग्राफ तो अपने आप में स्टूडेंट्स ये पहली क्लास है, बट ऐसे कम से कम 5-6 क्लासेस मैं आपको दूंगा, और इन क्लासेस को अगर आप ढंग से एक बार अटेंड कर लें, एंड फिर जिन बच्चों को चाहिए कि सर हम जीरो से इनकी टेक्निक्स पर काम करना चाहते हैं, हम जीरो से इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, उन सब स्टूडेंट्स के लिए वी डू हैव डेडिकेटेड ऑनलाइन कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एज वेल. सो स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, wherever you people are, if you people are CAT aspirants, if you want to get into the best of the IIMs and the best of the B schools, you people cannot afford missing this channel and missing these videos. And students, get in touch with us, get integrated with us by taking our online courses as well. Okay? चलिए, so सारे students start करते हैं पैरा जम्बल्स पर आज का ये पूरा fantastic discussion. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आई वांट यू पीपल टू गिव आंसर्स टू वन और टू वेरी सिंपल क्वेश्चंस. I'll begin with some very simple questions where 4 sentences will be given to us. See, you people understand what is the pattern of jumbled paragraph. 4 or 5 sentences are generally given to us and we need to arrange them to make a logical paragraph. So we need to find out कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, सेकेंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा. तो इस तरह से स्टूडेंट्स वी हैव टू अरेंज देम to make a coherent paragraph. तो अभी सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद हम टिप्स पर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. I'll tell you ऐसे कौन से अच्छे हैक्स होते हैं, how we people can ensure that कि पैरा जम्बल्स के सारे क्वेश्चंस अपने सही हो जाएं. और आज जो मैं 2-3 सेट्स लेकर आया हूँ बहुत अच्छे सेट्स हैं, एंड यू विल स्टूडेंट्स सी लाइक वी विल नॉट टेक ओनली 4 sentences, 6-7 sentences. ऐसे सेट्स भी वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड कैट में स्टूडेंट्स देयर वाज अ टाइम जब VRC का सेक्शन 1 आवर का होता था, उस समय वी यूज्ड टू सी दैट जम्बल्ड पैराग्राफ के क्वेश्चंस 6-7 सेंटेंसेस तक के वी हैव सीन इन कैट. और इसीलिए स्टूडेंट्स वी पीपल वांट कि आप जब प्रैक्टिस करो तो इस लेवल की प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छी हो गई, टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस अगर अपन ने कर ली, तो यू विल सी लाइक कैट के क्वेश्चंस दे विल फील ईजियर फॉर यू. ओके, तो चलिए we will take the very first question. Yes. So these are 4 sentences given to us. You people have to arrange them to make a logical paragraph. Yes. तो चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताएंगे हमें
Yes. One student is asking a question. I lose focus while reading. Yes, definitely. I will. Gurkirat Singh. Yes, Gurkirat Singh Makhija. I will give answer to this. एक बार इस क्वेश्चन का अपन आंसर ले लें. फटाफट इसको पढ़ो. Try to give the answer. Yes. So what is the right answer? Can anyone? Now this particular question is not so tough. And you people try to understand. Before I give the answer to this particular question, जंबल्ड पैराग्राफ पर अगर बहुत अच्छी कमांड बनानी हो तो कुछ टिप्स अपन हमेशा फॉलो करें. द वेरी फर्स्ट टिप इज जिस भी ऑर्डर में सेंटेंसेस आर गिवन टू अस, वी पीपल विल हैव टू रीड द सेंटेंसेस एज इट इज. तो एक बार उन सारे सेंटेंसेस को एज इट इज पढ़ लो. ओके, देन यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पैराग्राफ, व्हाट एक्चुअली द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. And once you understand the overall theme and overall message of the paragraph, try to find out from where to begin. तो मेरा starting sentence क्या होना चाहिए, और उसके बाद students आप कम से कम कोशिश करो दो sentences में you people can arrange a linkage, you people can identify a link between at least two sentences. Now students, when we talk about the links, there are multiple ways of identifying the link. कई बार आप देखोगे इस पूरे पैराग्राफ में कोई स्टोरी होती है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो यू विल एक्चुअली कम टू नो किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे इवेंट्स होने चाहिए. सो वन आफ्टर द अदर यू पीपल कैन इजीली फाइंड आउट कि पहले ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा. So that also becomes a way of identifying the correct sequence. Sometimes students आप देखोगे दो sentences में cause and effect का relationship होता है. So if there is a relationship of cause and effect, you people can identify accordingly. Sometimes there are two sentences which are contrasting sentences, which are actually opposite. इसका tone positive है तो उसका tone negative है. तो ऐसे contrasting pairs को identify करना is also not so tough. इस तरह से students you people see, अच्छा कहीं पर किसी सेंटेंस में होता है मैं थॉट को प्रेजेंट करता हूँ, बट उसके नेक्स्ट सेंटेंस में मैं उसी थॉट को और एलाबरेट करता हूँ. तो यस, इवन दिस अरेंजमेंट कैन बी देयर. वन वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूँ, व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज, दो बहुत अच्छे हिंट्स आपको जंबल पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस में मिलते हैं. सबसे पहला हिंट है स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस पर हमेशा फोकस करो. व्हेन आई से यू पीपल शुड फोकस ऑन प्रोनाउंस, you people should focus on the words like this, these, they, it. You people try to understand, ये जो pronouns होते हैं they will always have their antecedents. तो अगर मैं कहीं पर भी कोई pronoun यूज करता हूँ तो उसका कहीं ना कहीं तो antecedent होगा. What is the meaning of an antecedent? That means it is that noun जिसे वो pronoun refer कर रहा है. Understand? तो आज अगर मैं किसी sentence में कहता हूँ these are the people, so do understand which people we are talking about. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीपल का रेफरेंस तो होगा ही. व्हेन आई से ईच सीन, फॉर ईच सीन, अब अगर मैं ईच यूज करता हूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सीन्स का रेफरेंस तो होगा ही. सो माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, अभी इस पूरे वीडियो में जब मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यू विल एक्चुअली कम टू नो कि किस तरह से प्रोनाउंस आपको बहुत हेल्प करते हैं टू गेट द करेक्ट आंसर. सेकेंड स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस पर हमेशा फोकस करो. And when I talk about conjunctions, जैसे but है, जैसे therefore है, जैसे hence है. Now you people see that अगर कोई sentence but से start होता है तो we should know where do we use but. But हमेशा क्या करता है, दो opposite ideas को connect करता है. तो अगर मैं but के बाद कुछ positive लिखता हूँ, इसका सीधा सा मतलब है इसके पहले वाला sentence, the preceding sentence should have a negative tone. तो इस तरह से contrasting pairs के बीच में हमेशा but आता है. So wherever a but is there, you people can guess which can be the preceding sentence. इसी तरह से therefore, however, okay, notwithstanding, however, ऐसे बहुत सारे words अपन use करते रहते हैं. All these are conjunctions, and that is one hack which we people can definitely use. Okay? अब इसको practically कैसे implement करना है, that we are going to understand by solving these questions. Okay? So shall we start now? चलिए, तो पहला स्टेप, चारों सेंटेंसेस को पढ़ लो. एंड चारों को पढ़ने के बाद वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर टू बिगिन.
किसी भी पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग सेंटेंस होता है वो हमेशा उस आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है. तो हियर स्टूडेंट्स, व्हिच इज द बेस्ट वन? Yes, any guess? Any guess? What is the correct answer? Chalo, there is one answer which is available. Okay, let me see. Let me see whether this answer is correct or not. The British government consistently followed a policy of repression after 1857. I guess C se start karne mein there is no problem at all. Okay, but now students, after this, what will come? Yes, what will come? अब स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टू ऑफ दीज. सो व्हेन आई से टू ऑफ दीज, व्हाट इज दिस दीज? दैट बिकम्स अ प्रोनाउन. तो वी पीपल हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हेन आई से टू ऑफ दीज, तो मैं किन की बात चल रहा हूँ, अंडरस्टैंड, मैं किन की बात कर रहा हूँ. तो इस तरह से वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट. जैसे सी से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन आफ्टर 1857. Many measures of the government provoked widespread agitation. So if I take B after C, there is no problem at all. So students, British government ने 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई, पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, एक तरह से इंडियंस को सप्रेस करना, एक्सप्लॉइट करना. दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. अब उस पॉलिसी में व्हाट द ब्रिटिशर्स डिड, दे टुक मेनी मेजर्स which provoked widespread agitation. एजिटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डेमोन्स्ट्रेशन करना, विरोध प्रदर्शन करना, अंडरस्टैंड. सो व्हेन आई से मेनी मेजर्स, और इसके बाद अगर मैं कहता हूं टू ऑफ दीज वर, सो आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट. तो जैसे ही स्टूडेंट्स आपको समझ में आ जाए कि बी और डी का कॉम्बिनेशन इज द परफेक्ट वन, फैंटास्टिक. द टू ऑफ दीज वर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 and the Arms Act of 1897. Now coming on students A, here what is written? The former act. Students हमेशा ध्यान में रखो, former और एक और word आता है, that is latter. You people should understand what is the meaning of former and latter. कहीं पर भी स्टूडेंट्स अगर मैं दो चीज़ों की बात करता हूँ, तो जो फर्स्ट है that is known as former, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? former. एंड सेकेंड के लिए latter. I'll take one example. जैसे between Ram and Mohan, if I say the former is better, that means Ram is better. But if I say Mohan is better, then I can say, if I have to say Mohan is better, then I should say the latter is better. So between Ram and Mohan, the latter is better. That means Mohan is better. But एक और छोटा सा पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, former and latter, ये दोनों वर्ड स्टूडेंट्स हम तभी यूज करते हैं जब दो पर्सन्स का रेफरेंस हो. बट इन केस किसी सेंटेंस में हमने तीन पर्सन्स का नाम लिया, अमंग, राम, मोहन एंड श्याम, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कभी भी फॉर्मर या लैटर यूज नहीं होता. फर्स्ट, सेकेंड एंड द लास्ट, दीज वर्ड्स वी नीड टू यूज. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. सो स्टूडेंट्स, व्हेन आई से टू ऑफ दीज मेजर्स वर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट. सो द फॉर्मर एक्ट, फॉर्मर मतलब जिसका नाम मैंने फर्स्ट लिया, और लैटर मतलब जिसका नाम मैंने सेकेंड लिया. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरे सेंटेंस को नहीं भी पढ़ूं, आई कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट कि डी के बाद ए आएगा, एंड स्टूडेंट्स दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. फैंटास्टिक. ओके, तो सी बी डी ए, दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. कैट के हिसाब से ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट होल्ड ऑन, हम बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं. ठीक है, डन. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. यस, ऑल द स्टूडेंट्स take your own time, start giving the answers. and जो भी स्टूडेंट्स इसको बाद में ठीक है एक वीडियो फॉर्मेट में वॉच करेंगे, प्लीज इंश्योर दैट पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू गिव द आंसर्स. ओके, चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ फटाफट. Yes, yes, yes. Any answer? Yes, from where to begin?
इन चारों सेंटेंसेस को जब एक बार पढ़ोगे तो यू विल एक्चुअली कम टू नो इट इज अबाउट बैंकिंग, इट इज अबाउट नेशनलाइजेशन, ओके। एंड थोड़ा सा टॉपिक के बारे में अगर पहले से पता है तो उसका भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। यस, सो स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयर टू बिगिन? एनी आंसर? यस, चलिए नाउ लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन। If I read the very first sentence, recovery was given inadequate attention and consequently some bank branches regularly incurred heavy losses and their parent bodies had to bail them out. I think यहाँ से sentence को start करना, paragraph को start करना will not be much suitable. So A, I don't agree with. Coming on students, the second one B. As a result, आप सोचो students, इस phrase के साथ पूरे paragraph को start करना will not be logical. सो आई थिंक बी भी अपन लोग स्किप कर सकते हैं। सी कहता है स्टूडेंट्स टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय द मास्टर्स ऑफ नेशनलाइजेशन, बैंक्स वर आस्क्ड टू लेंड टू द आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी सेक्टर्स। आई थिंक अगर मैं सी से पैसेज को स्टार्ट करूं, पैराग्राफ को स्टार्ट करूं तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड कमिंग ऑन द फोर्थ वन, 92-93 results showed that the loss making branches of public sector banks increased from 10,000 to 13,000 and the quantum of losses showed rupees this much. यहाँ पर स्टूडेंट्स ए में हम लोग हैवी लॉसेस की बात कर रहे हैं एंड डी में स्टूडेंट्स वी आर गिविंग सम डेटा शोइंग दैट कि कितनी ब्रांचेस लॉस में हैं। ओके, तो क्या लगता है स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक द बेस्ट स्टार्ट इज सी। स्टूडेंट्स यू माइट बी नोइंग अबाउट नेशनलाइजेशन। 1969 was the year when Indira Gandhi was the Prime Minister. 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब है किसी प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक बना देना। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस? द पर्पस वाज टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द masses. Actually, these private banks, they were not opening branches in the villages and they were not giving loans to the priority sectors of the government, like the farmers, the poor people and all. And that is the reason इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, देखिए 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन। एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, अगर पिछले 75 ईयर्स में बैंकिंग इंडस्ट्री में जो बड़े मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं, अगर मैं उस पर बात करूं तो वन बिग टर्निंग पॉइंट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। स्टूडेंट्स, इफ यू पीपल कैन टेल अस more about which are the other major turning points, तो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि बैंकिंग सेक्टर के और इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स कौन से थे। तो एक भी अगर आप बताओगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आई विल बी हैप्पी, आई विल सी देम, आई विल कम टू नो कि आपको कितना पता है बैंकिंग के बारे में। सो टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय द मास्टर्स ऑफ नेशनलाइजेशन, बैंक्स ने ऐसे ऐसे लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया। एंड सेकेंड, बैंक्स वर आस्क्ड टू लेंड टू द आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी सेक्टर्स। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर्स का मतलब स्पेशली फार्मर्स, पुअर पीपल एक्सेट्रा। तो यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करने में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन स्टूडेंट्स, आई थिंक इफ आई रीड ऑल दीज सेंटेंसेस, बी इज द मोस्ट सुटेबल हियर। तो सी के बाद यहाँ पर मोस्ट सुटेबल क्या है? बी। As a result, banks indulged in extensive lending to borrowers who had little or no potential to make repayments. Absolutely. तो बैंकों को बोला गया आप गरीबों को लोन देना स्टार्ट करें, आप किसानों को लोन देना स्टार्ट करें। एंड एज अ रिजल्ट बैंक ने ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे दिया वो डिड नॉट हैव द रीपेमेंट कैपेसिटी। ओके, तो सी और बी आपस में मैच हो रहा है। एंड साथ में स्टूडेंट्स, रिकवरी वॉज गिवन इन एडिक्वेट अटेंशन। तो एब्सोल्युटली बी के साथ ए लेने में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड वैसे भी ए इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द हैवी लॉसेस, एंड डी स्टूडेंट्स हमें बताता है कि अल्टीमेटली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉसेस। तो इसीलिए स्टूडेंट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन हियर इज सी बी ए डी। दिस बिकम्स द बेस्ट आंसर। ओके, यू पीपल एग्री विद दिस और नॉट? And in case if you don't agree, comment box में ज़रूर अपना आंसर टाइप करो, and if it is possible give the reason also. But students, अब हम लेकर आते हैं real challenge question. Now see students, here
6 sentences are given to us. एंड जब 6 sentences को अरेंज करना हो, और ये मेरा ऑनेस्ट एडवाइस है, अगर कैट एग्जाम में 6 या 7 sentences का क्वेश्चन आ जाए, आप उसे हाथ भी मत लगाना, बिकॉज आई नो दैट 6 sentences में एक भी अल्फाबेट इधर का उधर हुआ, द कंप्लीट आंसर इज रॉन्ग. वैसे भी पिछले कुछ टाइम से कैट इज गिविंग द क्वेश्चंस वेयर ओनली 4 sentences आर देयर. कभी कभार 5 sentences का सेट भी आ सकता है. अच्छा, जंबल पैराग्राफ में स्टूडेंट्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो कैट में आता है, दैट इज टू आइडेंटिफाई द इररिलेवेंट ऑप्शन. जनरली व्हाट हैपेंस इज 5 options are given to us. 5 sentences are given to us. And among those 5 sentences, we need to make a logical paragraph using 4. And there is one sentence which is irrelevant. And our job is to find out that. तो बहुत इंटरेस्टिंग ये पैटर्न है, बट इसमें जनरली स्टूडेंट्स कमिट अ मिस्टेक. ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा वो सेंटेंस है जो कि उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता. एंड वो जो सेंटेंस होगा ना स्टूडेंट्स, वो भी आप देखोगे उस टॉपिक से रिलेटेड ही होगा. कैट वाले ऐसा तो क्वेश्चन देंगे नहीं जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते ही पता चल जाए कि दिस इज द इररिलेवेंट वन. बट एनीवे, उसके भी जो बहुत अच्छे टिप्स हैं वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्बल एबिलिटी. फिलहाल आई वांट यू पीपल टू रीड दिस पर्टिकुलर सेट एंड सॉल्व इट. तो मैं चाहूँगा जो बच्चे लाइव हैं वो तो मेरे साथ इसको सॉल्व करें, लेकिन जो बच्चे इसको बाद में देख रहे हैं, आप इसको पॉज करो, पहले खुद आंसर दो एंड वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. रीड ऑल द 6 sentences, आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग सेंटेंस, बी वेयर ऑफ द यूसेज ऑफ प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस. ओके, चलिए स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, सॉल्व करना. डन. तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. सो इफ यू रीड ऑल द सेंटेंसेस, generally I have seen students either they start with A or they start with F. कई बार मैंने इस क्वेश्चन को क्लासेस में लिया है and I generally see 50% of the class says कि सर सेंटेंस पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए A से, and कईयों का आंसर होता है F से. तो कम से कम इतना तो पता चल गया, स्टार्टिंग विल बी आइदर A और F. B कहता है बट इंडियाज फ्यूचर. तो आई गेस बट से स्टार्ट करना मे नॉट बी वेरी मच सूटेबल, बट स्टिल डोंट हैव दैट परसेप्शन कि सर कभी भी पैराग्राफ बट से स्टार्ट नहीं हो सकता. डोंट हैव दैट परसेप्शन. हाँ, जनरली इट डज नॉट हैपन. नाउ व्हेन आई से व्हाइल इट्स क्रिएटिव एसेट्स, इवन व्हाइल बिकम्स अ कंजंक्शन, एंड व्हाइल भी क्या शो करता है? कॉन्ट्रास्ट. तो मुझे लगता है स्टूडेंट सी से पैराग्राफ को स्टार्ट करना मे नॉट बी वेरी मच सूटेबल. डी कहता है दिस ट्रांसफॉर्मेशन. This is again a pronoun. So I think starting with this transformation may not be a very suitable option for us. And fifth, as students, its software industry is the world's second largest. So now you people try to understand. When I say it's, वापस से it becomes a pronoun. तो ultimately ये किसको रेफर कर रहा है? ठीक है, we need to understand. तो मुझे लगता है B, C, D, E, these cannot be the starting sentences. Now coming on A. If China is the world's factory, India has become the world's outsourcing center. Keeping in line with this image. अब सोचो स्टूडेंट्स, इस A में भी there is a pronoun which is coming. So when I say keeping in line with this image, which image I am talking about? मैं कौन से इमेज की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रेफरेंस होगा. So I think A से स्टार्ट करना is also not a suitable option. अब बताओ स्टूडेंट्स, हम कहाँ से स्टार्ट करें? एक ही ऑप्शन बचा है एंड दैट इज F. एक बार अगर हमने स्टार्ट को ढंग से आइडेंटिफाई कर लिया स्टूडेंट्स, अब मान के चलो आधा काम आपका हो चुका है. ओके, द चैलेंज इज टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट. इफ द मीटिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स at Davos is any indication, India is rapidly becoming an economic rock star. Davos में स्टूडेंट्स हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है एंड उसी मीटिंग की यहाँ पर बात हो रही है. If the meeting of world leaders at Davos is any indication, India is rapidly becoming an economic rock star. तो absolutely F से पैराग्राफ स्टार्ट होगा. आफ्टर F क्या लेना चाहिए?
स्टूडेंट्स अब आप याद करो यहाँ पर क्या लिखा था, दिस इमेज, तो पॉसिबली ये कनेक्ट होगा इमेज ऑफ व्हाट, image of economic rock star. So if China is the world's factory, India has become the world's outsourcing center, keeping in line with this image. तो F के बाद A का combination absolutely correct है. And China is known as world's factory because manufacturing का hub है. And India is the hub of the IT services. Therefore, India has become the world's outsourcing center. And when I talk about outsourcing, majorly students ये किससे related है? It is related with the IT services. तो मुझे लगता है students A के बाद जो best combination बनेगा, if you people have gone through all these sentences, the best combination is E. Why is it so? Because वहाँ पर मैंने reference किसका दिया? Outsourcing center का. And E में क्या लिखा है students? Yes, the software industry is the world's second largest. So anyway, students, we are talking about the software industry. And E is also very positive, very buoyant. It talks about कि देखो, it's tech outsourcing accounts for. Anyway, students, we are talking about outsourcing and उसी का data E में दे रखा है. So the point is given here and data to substantiate is given here. So this combination of A and D is absolutely correct. So its software industry is the world's second largest. Its tech outsourcing accounts for more than half of the $300 billion global industry, according to a technology expert. Absolutely. अब इसके बाद स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम इंडिया को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बट अगर आप अब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो B becomes the best choice here. Why is it so? Because B says but. तो अभी तक आप पॉजिटिव हो, लेकिन अब जब आप बट कहोगे इसका मतलब है यू शुड हैव समथिंग विच इज नेगेटिव और समथिंग विच इज कॉन्ट्रास्टिंग. बट इंडियाज फ्यूचर डिपेंड्स क्रूशियली on its ability to compete fully in the creative economy, not just in technology and the software. अब सोचो स्टूडेंट्स, बी क्या कहता है? केवल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होता. वी हैव टू कॉम्पीट फुल्ली इन द क्रिएटिव इकोनॉमी. ओके, और आगे क्या लिखा है? बट अक्रॉस डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, आर्ट्स, कल्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसलिए स्टूडेंट्स ई के बाद बी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है. ए एंड ई में स्टूडेंट्स यू वर वेरी पॉजिटिव अबाउट द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, अबाउट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. बट बी कहता है केवल सॉफ्टवेयर से क्या होता है? वी नीड टू कॉम्पीट फुल्ली इन द क्रिएटिव इकोनॉमी. सो लेट इट बी आर्ट, डिजाइन, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, मेडिसिन, लॉ, इन सब में वी हैव टू ग्रो. सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होगा. दैट इज व्हाट बी इज टॉकिंग अबाउट. आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बी में हमने एक वर्ड यूज किया, क्रिएटिव इकोनॉमी. एंड इफ आई टॉक अबाउट सी एंड डी, आई विल हैव टू मेक अ चॉइस कि इनमें से कौन सा सेंटेंस अब आएगा. सो सी सेज व्हाइल इट्स क्रिएटिव एसेट्स. तो एक तो स्टूडेंट्स वहाँ से कनेक्ट हो सकता है कि बी के बाद सी आना चाहिए. एंड सेकेंड, एक और बहुत अच्छा हिंट है. सी का लास्ट वर्ड क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन. एंड डी का फर्स्ट वर्ड क्या है? दिस ट्रांसफॉर्मेशन. सो दैट इटसेल्फ मीन्स पहले सी लेना चाहिए और उसके बाद डी. सो स्टूडेंट्स, सी विल कम एंड आफ्टर दैट डी विल कम. सो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. FAEBCD. So find out how many students have got the correct answer and yes, comment box में type करके बताओ. And if you disagree with this answer, so what is your answer? Type in the comment box. And moreover students, ये मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक तो करो ही करो, बट कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स आप कमेंट करके पार्टिसिपेट करो. आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना मजा आएगा. अंडरस्टैंड? ओके, चलिए फैंटास्टिक. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अब अभी तक तो मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन लिया इन विच यू हैड 6 sentences. But now students, you people are going to get a very challenging set in which there are 7 sentences. अच्छा, what is the purpose of taking this? अगर मैं 7 sentences, 6 sentences में आपकी प्रैक्टिस करवा दूं, आप देखोगे स्टूडेंट जो 4 वाले सेट्स हैं वो तो बहुत ईजी हो जाएंगे. इसीलिए ये जो बड़े सेट्स हैं इनकी प्रैक्टिस करो. इससे पेशेंस आता है, इससे एक्चुअली पेशेंस आता है. और इंग्लिश को पढ़ते समय पेशेंस एंड टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
हम जल्दी से वेयर आउट हो जाता है हमारा पेशेंस, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, चलिए ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज 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 कम ऑन। Yes, the students who are live, they will solve with me. एक बार बस all 7 sentences. You people just read it once. Read all the 7 sentences once. दिखने में सेट बड़ा है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसमें बहुत अच्छे हिंट्स हैं, एंड ये जो डिस्कशन मैं करूंगा इट विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए कहाँ से स्टार्ट करें? बाकी सब बच्चे पहले पॉज करो, ओके, जो बाद में इसको देख रहे हैं इस पूरे सेशन को, पहले पॉज करो, फाइंड आउट द आंसर, नाउ लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन। शैल वी स्टार्ट? डन? अच्छा, एक तो टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, सीआरएम, एनआरएम, एक पॉसिबली बहुत सारे बच्चों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। Still don't give up. We can still manage to give the correct answers here. Shall we? Okay. चलिए अब स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट करें? To elaborate briefly, I don't think so यहाँ से स्टार्ट करना ज़्यादा सुटेबल होगा। Contrastingly, so that becomes again we are talking about a contrast, तो इसके पहले कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। C कहता है in most of these books, we cannot start from here. D कहता है another author, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑथर की बात तो पहले हो चुकी है, तो we cannot start with here. Then student C कहता है numerous books on constructing and using language tests have been written by various authors. I think यहाँ से start करने में there is no problem at all. F CRMs on the other hand, when I say on the other hand, again we are talking about the contrast. And G, one of the authors clearly delineates the differences of these two types. So when I say one of the authors, तो definitely authors का कहीं ना कहीं तो reference होना ही चाहिए. So the best thing is E से start करते हैं. I'm writing the answer here. Numerous books on constructing and using language tests have been written by various authors. अब इसके बाद students क्या होना चाहिए? C, when I say another author, तो पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑथर की तो बात होनी चाहिए। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, व्हेन आई से न्यूमरस बुक्स, सी में क्या लिखा है? इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स। तो आई गेस व्हेन आई से दीज बुक्स, तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो सकता है। तो इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स द ऑथर्स क्लासिफाई अ मेजरमेंट स्ट्रैटेजी एज आइदर नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ओके, पॉइंट समझ में आया? यस। तो सबसे पहले ई से अपन स्टार्ट करेंगे, न्यूमरस बुक्स। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ दीज बुक्स, तो व्हेन आई से मोस्ट ऑफ दीज बुक्स, तो यस दिस कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट। सो ई के बाद सी, द ऑथर्स क्लासिफाई। नाउ सी, वी आर गिविंग अ रेफरेंस टू ऑथर्स हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। दो तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, एनआरएम एंड सीआरएम। क्या मीनिंग होता है? लेट अस नॉट वरी अबाउट दैट। अब स्टूडेंट्स, वन ऑफ द ऑथर्स, तो आई गेस जी लेना विल बी सुटेबल, बिकॉज यहां पर स्टूडेंट्स मैंने ऑथर्स की बात की एंड जी कहता है वन ऑफ द ऑथर्स। तो व्हेन आई से वन ऑफ द ऑथर्स क्लियरली डिलिनिएट्स द डिफरेंसेस ऑफ दीज टू टाइप्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन आई से दीज टू टाइप्स, कौन से दो टाइप्स? एनआरएम एंड सीआरएम, जिसका रेफरेंस सी में दे रखा है। तो एनीवे स्टूडेंट, सी के बाद जी का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। So one of the authors clearly delineates the differences of these two types by focusing on the categories of test characteristics and the logistical dimensions. Okay, so by focusing on the categories of test characteristics and logistical dimensions, meaning nahi bhi samajh mein aave, no issues. ECG, this combination is done. अब सोचो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पहली बार दो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन इज डायमेंशंस। अब ए कहता है टू एलाबोरेट ब्रीफली ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस, तो आई गेस दिस कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट। जी के बाद ए, एब्सोल्युटली। सो टू एलाबोरेट ब्रीफली ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायमेंशंस दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, NRMs are general tests intended to be used to classify students by percentile for measuring either aptitude or proficiency for admissions
into or placement within a program. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स जी के बाद ए लेने में देयर इज नो प्रॉब्लम. ये दोनों वर्ड्स बहुत अच्छा हिंट है यहाँ पर. अब इसके बाद ए के बाद व्हाट हैज टू कम? यस, राइट राइट राइट. तो ए में स्टूडेंट्स आप देखो मैंने एनआरएम्स की बात की, सीआरएम्स का कोई रेफरेंस नहीं है. एनआरएम्स आर जनरल टेस्ट. अब बी कहता है कॉन्ट्रास्टिंगली द सीआरएम्स सच एज अ लोकली प्रोड्यूस्ड अचीवमेंट टेस्ट. ओके, एंड एक और जगह मैंने पढ़ा था ऑन द अदर हैंड. यस, एफ कहता है सीआरएम्स ऑन द अदर हैंड आर मोर स्पेसिफिक अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट. अब सोचो स्टूडेंट्स, ए में मैंने एनआरएम्स के बारे में बात की. अब मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे कॉन्ट्रास्ट करना है, मुझे सीआरएम के बारे में बताना है. मेरे पास दो ऑप्शन है, वन इज बी एंड वन इज स्टूडेंट्स एफ. नाउ हियर if you understand the meaning of a sentence, it will actually give you some help. NRMs are general test और general का opposite क्या होता है? Specific. तो इसीलिए students, NRMs are general test, but CRMs on the other hand are more specific achievement test. तो I think A के बाद अगर मैं F लेता हूँ तो that is perfect. Okay? और इसके बाद students D and B two options are there. तो एक author की बात हमने complete कर ली. Another author points out how the type of interpretation that an NRM offers. वापस से स्टूडेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं? NRM की. तो D will come here and then students if I take B which says contrastingly the CRM such as. तो NRM के बारे में हमने D में बात की, उसे contrast करता है B. So this becomes the correct combination. Even if students, you people haven't understood the meaning of the whole paragraph, still this becomes the correct answer. Okay, this becomes the correct answer, and even if you people have not understood the whole of the paragraph, still just on the basis of some hints, we can manage to give the correct answer. सबसे पहला hint, from where to begin? Numerous books. Second hint, in most of these books. Then there are two strategies, NRM and CRM. One of the authors, differences of these two types. Okay, and then students we are using two words here, characteristics and dimensions. उसका reference elaborate कर रहा हूँ मैं A में, and A says that NRMs are general test, and F says CRMs on the other hand are specific test, and D says another author, and उसे contrast करता है B, क्योंकि D में NRM की बात है और फिर स्टूडेंट्स B कहता है CRM on the other hand. So this was the way how we people can manage to give the correct answer. Yes, ऋषिकेश दुबे, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. You people can get in touch with me. I'll share all the details, जिसमें live classes and recorded, and you will get everything. Vocab, reading comprehension, verbal ability के सारे concepts, and then students grammar as well. Okay? If you really want कि बहुत अच्छी तैयारी अपन लोग करें बेसिक लेवल से, तो yes, you people get in touch with us and you can enroll with our complete dedicated course. Okay? So you can get in touch with us. मुझे WhatsApp कर देना, ठीक है, मेरी टीम यहाँ से आपको रिप्लाई कर देगी और फिर स्टूडेंट जो प्रोसीजर हम बताएं accordingly you can get registered. Okay? चलिए, now students I'll take one question which has actually come in CAT 2023. So this becomes an actual PYQ set, okay, of CAT, and this question was there in the slot 1 of CAT 2023. Okay, but anyway, मैंने आपको इससे tough questions करवा दिए, तो मैं चाहता हूँ कि इसका solution you people will type in the answer. इसकी जो भी answers हैं, जो sequence हैं, comment box में type करके आप मुझे बताएंगे. So this becomes your home assignment. वैसे भी PYQs को लेकर बहुत सारा content available है online. But anyway, students, I want you people to solve it on your own once, and then, okay, I will post the correct answer in the comment box. You people can see that. Okay, so this becomes your home assignment, और यहीं पर students मैं अपनी क्लास को end कर रहा हूँ. Reading पर जिस बच्चे ने मुझसे question पूछा था, sir, I lose focus. Just hold on for 2 more days. Day after tomorrow, we are going to have another live session on reading comprehension. और उस live session में I will talk about how we people can ensure that we don't lose our focus.
बट फिलहाल द पीस ऑफ एडवाइस इज वॉट एवर हैपन्स यू डोंट गिव इट अप, छोड़ना नहीं है, अंडरस्टैंड, ठीक है, वी शुड नेवर गिव इट अप, आप इतना सा ध्यान रखो, हमें बस लगे रहना है, ओके। चलिए बाकी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। सी यू लाइव डे आफ्टर टुमारो अराउंड 7 PM। So thank you very much.